कि आपने बाहुबली बनाई है? नहीं यार, बाहुबली आई थिंक इट्स मतलब अभी कुछ नहीं। मुझे लगता है कि कुछ भी बोलना ना अभी इज नॉट बीइंग मॉडेस्ट। आप फिल्म के बारे में रिस्क पहले बोलना और कैसी बनाई है, आई थिंक इज वल्गर। नो, खुद ही अपनी फिल्मों की तारीफ करते रहो, कैसे कर सकता है आदमी? मतलब आई थिंक इसे कंटेंट इज देयर, और कंटेंट आप तक पहुंचेगा, ट्रेलर के थ्रू जाएगा, आप लोग देखेंगे, और आप चीट नहीं कर सकते ऑडियंस को। आई थिंक उन लोग समझ जाते हैं कहीं पे फिल्म अच्छी है बुरी है। आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल कम एंड सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। You know, रणवीर इधर मैं this is रणवीर Nandeep from DNA. So I wanted to ask you that your last film, Adil Mushkil, despite a clash, did exceedingly well. You were talking about box office numbers. This film was supposed to clash with 3 other films, but all of them have moved, and you have a standalone release. So are you happy? And what do you think of Of the box course, office? you know, I think any film that clashes, they kind of lose some part of the business. But I also come from the school of thought that a good film, the audience will come, irrespective if it's clashed with however big a film it is. So अगर आपकी film अच्छी है, people will talk about it, it'll spread, a good positive word of mouth will spread and people will come and see it. But I mean, it's a good sign, that the other films have moved. I think we should send them thank you notes, that only our film will be running that week. Yeah, so I'm very happy. रणवीर इधर मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैं सुमा घोष दिस साइड, हाँ, कि आपने बहुत सारी अलग अलग तरह की फिल्में की हैं और ये फिल्म बाकी सभी फिल्मों से कितनी खास है और कितनी अलग है आपके लिए? खास ये है कि I'll be honest to you, it's a little bit of a superficial thing, लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आ रहा था तो ऑफ कोर्स सपने होते थे कि मैं मेरा पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, क्रिटिक्स मेरा काम पसंद करेंगे, ऑडियंस पसंद करेंगे। बट हमेशा आई हैड दिस डिज़ायर कि मुझे एक बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीतना है, एंड आई डोंट, और इसका श्रेय तो मैं कुछ नहीं ले सकता, मैं सब इसके शोल्डर पे डाल के यही जीत सकता हूँ, बिकॉज दिस एंटायर फिल्म हैज़ मेड फ्रॉम हिम, बट इट्स ऑलवेज बीन माई ड्रीम. So I think with this film, I really hope that we can achieve that. I'm putting the energy out in the universe. Let's win Best Picture this year for Jaga Jasoos. Katrina, hi. Take the last question and wrap up, please. Yeah, hi. This is Priyanka This from is Indian Pia Express. from India Today. Yeah, towards Straight, your yeah. right. Okay. So this is a little we'll take both questions. Let's take yours first. Okay, so this is a little offbeat. Very recently, a lot of actresses on social media being body shamed, either for their complexion or for the dresses that they wear, be it Priyanka Chopra, Deepika Padukone, and more recently, Fatima Sana Sheikh has been, receiving a lot of flack for, wearing a swimsuit during the month of Ramzan. How do you, as an actress, handle, online trolls, and do you think this is very unfair for an actress? Honestly, I think my take on social media is you should take the positivity, accept people's opinions, and just avoid the criticism or avoid the negativity. That's honestly the simplest way that I go about it, and I think that's just what you need to do. You're on it, I think, for the interaction with the people who are your well-wishers, who are your supporters. Sometimes you get good feedback, good information, and that's what I think you need to pay attention to. You don't need to pay attention to any of the negativity or the criticisms. Ranbir, thank you. Last question. This is Priyanka from Indian Express Online. So talking about clash, earlier your film, Dutt and Tiger Zinda were supposed to clash, but now it's moved to March 2018. Do you think when you do something like that, when you push a film's release date, it sends out a perception that you guys are not that confident about the product? Well, I don't think so. I think a film has its own destiny. When a film is ready, you should put it out. You should put out the best version of the film. I've never played a part in when the film should release, it should clash with something, come on a holiday. Of course, Tiger Zinda is the biggest film of Indian cinema coming this year. And I'm sure the producers had really had, good meetings and understood logistics, understood budgets, understood how much this film can earn, cannot earn, and they've taken this wise decision. But I have nothing to play in this. I come in, my role is of an actor. I've been told that now the film could come in March, it's not coming in December, and that's fine for me. As long as the film is good, as long as they're doing the best that they can, I'm happy with that. No, I wish I had, but I don't have a cameo. Yeah, I wish I had a cameo in that film. Yeah, let's take that last question. Yeah. Okay, we'll take yours also. Sorry, ma'am, I can't hear what you're saying.
my stand is I'm not on social media because I believe that it affects your mind, it affects your purpose. I don't know. Do you think? B look for honey, not a fly look for filth. Avoid. Best question tha ketna ka. Thank you so much. Thank you. I just before I just really wanted to introduce. No. See, Ravi is been sitting. Just 2 seconds. The pillar behind the music. The first pillar is Pritam, of course. अच्छा अभी कुछ सुने. Bhushan ji, please आइए. Ravi, please come on stage. वार्निंग दिया मुझे. नहीं कुछ नहीं. It was addressed to me and Pritam. Someone's got questions for us. Bhushan sir, how are you? Welcome. We have Ravi sir also here. Actually, let's first question be from Bhushan. Music delivery कब होगी? Probably ask about the third song. Hi, Ravi sir, this is Alok आपके left में. कहाँ है आलोक? Hi. आपका मैसेज मिला सुबह. अरे थैंक यू सर. सर सवाल है कि आपके एक्टिंग की बात की जाती है, बाकी चीज़ों की बात की जाती है, डांसिंग स्किल जो है आपकी उसके बारे में काफ़ी आप भी कम बात करते हैं और रेगुलर लिखा भी कम जाता है. ज़रा उसके बारे में बताएं अपने डांस की कैपेबिलिटी के. वेल एक्चुअली जैसे सब जानते हैं हिंदी फिल्मों में डांसिंग बहुत ज़रूरी होता है. आई थिंक एवरी एक्टर फॉर देम टू डांस एंड रियली हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं इसकी तरह से इतना कमाल का डांसर नहीं हूँ. आई थिंक शी इज़ अमेजिंग वो तो है द वे शी डांसेस. नॉट मैनी पीपल नो कि जब इन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाल्लाह, कमली, ये सब बहुत उम्दा गाने किए थे. इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था क्योंकि मैं इसको रिहर्स करवाता था, एक्सप्रेशंस, वेरिएशन सब कुछ सिखाता था. देयर इज़ नो ग्रेटफुलनेस दैट यू हैव शोड अबाउट दिस एंड यू बिकम दिस. पीके आया क्या? जो भी वो आमिर खान था. नो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन. एंड जब हम दादा के साथ गाना करते हैं, दादा कोरियोग्राफर को तो बुलाते हैं लेकिन खुद डांस करते हैं. जस्ट टू सी हिम हैविंग सो मच फन. लाइक ऑल द स्टेप्स इन दिस सॉन्ग आल्सो एवरीथिंग वाज इम्प्रोवाइज्ड. ऐसा हमने कुछ रिहर्सल बिल्कुल किया नहीं, सेट पे जाके हमने पूरा गाना शूट कर दिया था. कतरीना, गाने की लाइन है, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. तो इस लाइन से कितना इत्तेफाक रखती हैं और मिस्टेक करने की कोई उम्र होती है? asking वो लिरिक्स के बारे में कुछ. I think there are no. I think लिरिक्स का एक्सप्लेनेशन दीजिए दादा. गलती से मिस्टेक. मिस्टेक करने की कोई उम्र नहीं होती. आप किसी भी उम्र में मिस्टेक कर सकते हैं और कैटना की उम्र में खास करके ज्यादा. पहले आप बोलो, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? हाँ जी, कहाँ से हो? स्पॉट बॉय से. ओके, तो क्या आपका क्वेश्चन था? मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में कोई मिस्टेक्स नहीं होते. दे ओनली लर्निंग्स. दैट्स हाउ यू ग्रो एज ह्यूमन बीइंग्स. दैट्स हाउ यू ग्रो एज आर्टिस्ट. सो देयर इज नो मिस्टेक्स. हम सब उल्लू के पट्टे हैं. रणबीर, आपके राइट रितेश ईटीवी से दादा के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस? अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है. जब हम बर्फी पे काम कर रहे थे और मैं अभी ऐसे नहीं है कि अभी बर्फी रिलीज़ हो गई चल गई, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था बर्फी में क्या हो रहा था. जब मैंने फिल्म 1 हफ्ते पहले देखी, मैंने बोला अरे वाह, ये क्या फिल्म बना दी दादा ने यार. तो आई थिंक जो इनका प्रोसेस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मैं समझता हूँ. आई डोंट थिंक he'll be able to work with any other actor. मैं ये भी कह रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट हिम टू वर्क विद एनी एक्टर बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री. आई थिंक हिज नॉलेज अबाउट सिनेमा, हिज नॉलेज अबाउट एंटरटेनमेंट, अबाउट इंडिया, अबाउट engaging an audience, about music, about characters, performances, बहुत मतलब it's on a different level. So I really hope कि me and Dada can make a lot of films together. जब हमने जगह जासूस प्लान की थी, हमने एक सीक्वल भी प्लान किया था. बट जैसे ये फिल्म में मैं अपने फादर को ढूंढ रहा हूँ, जिस तरीके से फिल्म बन रही है, दूसरी फिल्म में मेरे पोते मुझे ढूंढेंगे. तो बट इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई होप ये टू मी ही इज़ अ रियल दादा. दादा का जो हक होता है ना, ये इंसान है, ये दादा है. हाय रणबीर, फरीदुन फ्रॉम आप नमस्ते.
नमस्ते जी, रेखा कैसे हो खान, आप? नवभारत टाइम से। हेलो मैम। मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप लोग बार बार करना चाहेंगे? कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम चाहते हैं कि हम बार बार करने से भी पछताते नहीं हैं। जितना टाइम नहीं है कटरीना, जल्दी बोल दे। रणवीर, आप क्या कौन सी गलती है जो सी आप ये सुनना चाहेंगे कि मैं प्यार बोलूं, बट प्यार अकॉर्डिंग टू भी गलती नहीं है, तो मैं प्यार नहीं कह सकता। आई थिंक गलती सड़क पे सुसु। ये बार बार करना चाहेंगे? मजा आता है कभी कभी। चलती ट्रेन से ट्राई करना कभी। अच्छा रणवीर, एक दूसरा सवाल है कि आपने माशाल्लाह अपने करियर में बहुत वेरिएशन की फिल्में की हैं और बहुत अच्छा आप काम करते हैं। मुझे ये बताइए कि दादा जो आपके हैं, राज कपूर साहब, उनको आप कौन से ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे पल होते हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे तो बहुत सारा एक रिजेम्बलेंस दिख रहा था इस गाने में, उनको आप किन मौक़ों पर याद करते हैं? वो कौन से मौके हैं जो वो आपको इंस्पायर करते हैं? आई थिंक हर मौके पर मैं उनको याद करता हूँ। मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, जो 10 साल मैंने काम किया, सोनी बिकॉज ही शोड मी द वे। आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि मैं इस परिवार से हूँ, उनका पोता हूँ। एंड और यही कोशिश करता हूँ कि ही इज़ लुकिंग एट मी फ्रॉम देयर एंड ही इज़ रियली हैप्पी, ही इज़ प्राउड कि मैं उनका जो उन्होंने नाम शोहरत कमाई है, मैं वो बर्बाद नहीं कर रहा। मैं वो कायम रख रहा हूँ अपने तरीके से, अपने जहन से। एंड आई होप that I can continue doing some good work.